Good morning, students. Today we are going to start with a new topic of class 11, that is the first chapter, some basic concept of chemistry. जो ये chapter है some basic concept of chemistry that is related to somehow with class 9 chapter the structure of atoms. Okay, जो कुछ basics चीजें हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी उसी को हम एक next level में इस chapter में पढ़ेंगे. The second slide that is going to come in front of you is some basic concepts. जो concepts हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़े थे उसी को हम पहले थोड़ा सा रिपीट करते हैं so that we can move forward with the chapter. सबसे पहले the atoms, ठीक है. Atoms you know is the basic structure or basic functional unit of matter. जो भी हमारे matter होते हैं solid, liquid, gases, they are made up the smallest particle that is called the atom. जब क्लास 9th में थे the Dalton stated a postulate that atoms cannot be divisible. कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे हमने केमिस्ट्री को आगे पढ़ा तो हमें वी गॉट टू नो दैट एटम इज डिविजिबल and it can be divided into sub particles of proton, neutron and electron. ठीक है, तो atoms is the basic unit of your matter. Your matter is made up of smallest particle called atom, and today's in chemistry we can say that atom can be divisible into proton, neutron and electron. They are the subparticles. The next thing that we have already studied in class 9 is molecule. Molecule is when same type of atom, same type, okay, please remember this, same type of atom combines, atoms combine together. Like for example, if I take the example of chlorine gas, here chlorine is an atom and next chlorine is an atom. This is an atom of chlorine and this is an atom of chlorine. When they combine together with the force of attraction, they form a chlorine gas. Here you can see the atomicity of chlorine is gas is 2. ठीक है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम्स आपस में कंबाइन करके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं. सेम वे वन मोर एग्जांपल दैट आई कैन टेक इज ऑक्सीजन. The atom of O combined with an atom of O to form O2. It is not always that the atomicity is 2. हमेशा नहीं होगा कि हमेशा O2 ही बन रहा है या 2 ही atoms combine कर सकते हैं. There are many that can be combined. Like for example, I take the example of sulfur. Sulfur is when in the solid state it combines with an 8. It has the 8 as its atomicity, sorry. Then like P4, phosphorus. Phosphorus starts combining with an atomicity of 4, means it is tetraatomic, P4. ठीक है, तो these are the molecules, fine, they're combining with the same type of atom. Now the next topic that we have is compounds. Compounds क्या होते हैं, क्लास 9th में स्टडी कर रखा है इसको हमने. Compounds are when different atoms combine together in a fixed ratio. जब अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, एटम्स किसके, एलिमेंट्स के, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल H2O, hydrogen and oxygen combine together to form H2O. Hydrogen and oxygen combine together to form hydrogen peroxide. So they are the compounds of hydrogen and oxygen, as they are having the fixed ratio. In H2O, the hydrogen and oxygen combines in the ratio that is 1:8. तो जो इनका जो कंबाइनिंग जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप उसको किसी भी सोर्स से लो, वाटर इज फ्रॉम पॉन्ड और फ्रॉम सी और सलाइन वाटर समथिंग. यस, द इम्प्योरिटीज इन समथिंग विल वेरी, बट जो उसका बेसिक कंपोनेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो फिक्स रहेगा. तो ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं. लाइक एमोनिया, NH3, it is also a compound of nitrogen and hydrogen because its
it's mixture, yeah, or we can say it's combining with a fixed ratio. जो उनका particular जो masses होंगे वो fix होंगे. तो ऐसी चीज को हम लोगों ने class 9 से पढ़ते आ रहे हैं, that we call it compound. Now the next one is mixture. Mixture और compound में सिर्फ एक important जो difference होता है वो ये होता है कि जो mixture होता है that has a variable combining capacity. ठीक है, जैसे आपको पता है एयर, एयर में there air is a mixture. Why air is a mixture? Because you have different components in a different ratio. ठीक है, it is not compulsory that everywhere that particular रेशियो विल मैटर. एयर आपको पता है ऑक्सीजन की बनी है, नाइट्रोजन की बनी है, उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी है, बट वो और उसमें आपके अलग डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. तो वहां पर वो प्लेस टू प्लेस वो वेरी करती है कि कहाँ पर किसका ज्यादा रेशियो है. ऑफकोर्स हमें ये लिटरली पता है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हैव अ रेशियो ऑफ 70, ऑक्सीजन ऑफ 21% एंड नाइट्रोजन ऑफ 78%, बट ये वेरी कर सकती है प्लेस टू प्लेस में, अर्बन सिटी में और एक रूरल एरिया में. तो ये होता है एक मिक्सचर, बिकॉज उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो कंबाइनिंग रेशियो होता है वो सेम नहीं होता. सो दीज थ्री ऑलरेडी यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर क्लास 9. मिक्सचर्स हमारे दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. Homogeneous mixture में क्या होता है कि you have a uniform layer. You have a uniform layer. Suppose I mix water with sugar, or if I mix water with a salt, you cannot see the salt डिफरेंटली या इन अ डिफरेंट लेयर इन वाटर, क्योंकि आपको पता है जो सॉल्ट होता है या जो शुगर होता है वो वाटर में बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स हो जा सकता है अप टू अ सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट के बाद तो इट इज ऑफ कोर्स, अब उसमें आपको पार्टिकल्स दिखते हैं शुगर के या सॉल्ट के, लेकिन वो फिर भी यूनिफॉर्म है. ठीक है, यू कैन नॉट क्लियर आउट द लेयर्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विद योर नेकेड आईज. नेक्स्ट इज हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस का एग्जांपल कैसे दिया, जैसे मैंने दिया ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल. ठीक है, ऑयल और वाटर को अगर आप मिक्स करते हो तो ऑयल और वाटर जो होता है वो डिफरेंट लेयर्स में दिखता है. आपको पता है ऑयल ऊपर आता है तैरता हुआ और वाटर नीचे होता है, तो इसका एक हेट्रोजेनस आपको लेयर दिखती है या नॉन यूनिफॉर्म लेयर दिखती है, नॉन यूनिफॉर्म लेयर, तो उसको आप लोग बोलते हो मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर. Now, some of the units that you should remember for class 11 in a particular of this chapter, कि कुछ units आपको आप class 7 आप class 5 6 से पढ़ते आ रहे हो. 1 किलोमीटर is equal to 1000 मीटर, 1 लीटर is equal to 1000 मिलीलीटर. ये जो बेसिक यूनिट्स हैं वो 9 5 से लेकर 10 तक का आपकी सेम रही है, वो 11th में भी आपकी सेम ही रहेंगी. ठीक है, दे आर द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड. बट कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कुछ नई यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी है. जैसे फर्स्ट यूनिट हम लोग डिसाइड करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में. ठीक है, टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है. और टेम्परेचर आप 3 तरह से नाप सकते हो, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में. ठीक है, अब सेल्सियस डिग्री में को और फ़ारेनहाइट और केल्विन को जो स्टैंडर्ड होता है हम केल्विन में उसको लेते हैं. जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन में होता है. लेकिन बाय चांस आपको सेल्सियस में दे रखा है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे. तो ऑलवेज रिमेंबर अगेन दिस यू हैव टू स्टडी इन योर क्लास 9 कि अगर किसी भी टेम्परेचर को जो सेल्सियस में दे रखा है आपने उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट विद सेल्सियस एडिंग विद 273. आप 273 से इसको ऐड करोगे, फाइन. और अगर आपको केल्विन में दे रखा है और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, -273 करोगे. सेकेंड, अगर आपको कोई भी चीज सेल्सियस में दे रखी है और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करनी है फॉर अ रीजन, तो आपको पता है सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 + 32. ये बेसिक फॉर्मूले भी हम लोगों ने स्टार्ट करे थे आपके क्लास 9th में ही, हम लोगों ने इनको स्टडी कर रखा है. सो इट फॉर अ रिवीजन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं रहा है हमारे 9th-10th के कोर्स में. लाइक सपोज आई गिव एन एग्जाम्पल कि अगर मैंने 32 डिग्री सेल्सियस लिया है, ठीक है, आई वॉन्ट द कैलकुलेशन इन कैल्विन. ये न्यूमेरिकल में मेरा कैल्विन की पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो आपको पता है कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मैंने 273 को ऐड करना है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू योर 5 10 and 1 305
केल्विन। तो आप अपनी कैलकुलेशन में केल्विन में 32 डिग्री सेल्सियस को 305 के हिसाब से यूज करोगे। सो दिस इज द फर्स्ट यूनिट। अब बहुत सारे रिलेशनशिप आपको पता होते हैं, बट कुछ नए टर्म्स इसमें एड ऑन करने जा रहे हैं हम लोग, लाइक 1 पिकोमीटर, 1 नैनोमीटर एंड 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज दिस? आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 1 पिकोमीटर, ये क्या है? पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर का मतलब होता है दैट इज 10 की पावर -12 मीटर। दिस रिलेशनशिप यू शुड रिमेंबर। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10 की पावर -8 मीटर और 10 की पावर -12 centimeter. So these things are important to remember because somehow you're going to have them in your calculations in the coming chapters, not only the first chapter, in the coming chapters also. तो ये चीजें आपको रिलेशनशिप को ध्यान होना चाहिए। तो ये तो जितना भी मैंने पढ़ाया सारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया, क्लास 9 से रिलेटेड है ज्यादातर। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द लॉस। ठीक है, वी आर कमिंग विद द लॉस कि जो हम कुछ लॉस को हमें ध्यान रखना चाहिए केमिस्ट्री की इक्वेशंस करते वक्त। ये जो लॉस आपको मैं 3-4 लॉस पढ़ाने वाली हूँ, ये लॉस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कि आपको कैसे केमिकल रिएक्शन बनाते वक्त करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लॉस को भी हमने सेटिस्फाई करना होता है। तो फर्स्ट लॉ जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। अगेन ये हम लोगों ने क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का हो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का हो, वो यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कैसे? सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए C+O2 करूंगी तो क्या बनेगा? CO2। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। अब कार्बन को सपोज इफ आई हैव टेकन 12 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन आई हैव टेकन 32 ग्राम, तो ऑब्वियसली मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो 44 ग्राम बनाएगा। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहता है कि the mass of the reactant या the sum of the mass of the reactant is always equal to sum of the mass of the product। मतलब reactant का mass और product का mass हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। Like for example, I take C plus half of oxygen forms carbon monoxide। कार्बन मैंने 12 ग्राम लिया सपोज, ऑक्सीजन हाफ ऑफ O2 आई टेक इट सपोज 16 ग्राम। ठीक है, देन आई टेक CO, तो कार्बन का क्या 12 प्लस या 16, तो 12 प्लस 16 आपका यहाँ पे कितना हो गया? कार्बन का आपका यहाँ पे 12 है। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो आप इसमें ये देखोगे कि इट विल बी फॉर्मिंग 28 ग्राम। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देख रहे होगे कि प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट का मास है और जो रिएक्टेंट का मास है दे आर इक्वल। तो यही लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब चाहे कोई भी इक्वेशंस लोगे, हैवी से हैवी, कम या कोई भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन, छोटी से छोटी इक्वेशन, ये चीज हर किसी में एप्लीकेबल होगी। Next law that we are going to study after law of conservation of mass is law of definite proportion। अब law of definite proportion की wording से ही आपको समझ में आ रहा होगा वो क्या कह रहा है कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, कंपाउंड होता है वो हमेशा सेम एलिमेंट्स में फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट में ही कंबाइन करता है। जैसे आपको पता है H2O इज अगेन अ कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये दोनों हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं और वो रेशियो हमेशा क्या पाया गया है? दैट इज 1:8। ठीक है, कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के 8 गुना ज्यादा ग्राम से कंबाइन करेगा तभी ही वाटर बनेगा। ठीक है, एमोनिया इज हेयर। ठीक है, हेयर बी nitrogen combined with an hydrogen in a fixed ratio of your 4:3। ठीक है, तो हमेशा याद रखना
कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों ही एलिमेंट्स फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन करते हैं। अगर उनका प्रपोर्शन चेंज होता है तो दैट मीन्स वो कंपाउंड, अब वो पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं रहेंगे, वो कुछ और नई चीज बना देंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा वाटर ही बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कुछ और कंपाउंड्स भी बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हैं, बट वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो वो एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। अगर आपका रेशियो चेंज होगा तो आपका कंपाउंड भी चेंज होगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। नाउ next is, after law of definite proportion we are going to study a very important law। और बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है बट ये कॉम्प्लिकेट है नहीं, इट्स वेरी इजी। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि states that when two elements combine to form more than one compound, अगर दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो उसमें जो आपका उनका जो रेशियोज होता है वो हमेशा एक होल नंबर पे होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज आपको पता है एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके या तो H2O बना सकते हैं या तो H2O2 बना सकते हैं। H2O is a water and H2O2 is a hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is a chemical that is used in the cleaning or in the for manicure and pedicure in the parlors, and there's a cleaning agent. ठीक है, तो हाइड्रोजन peroxide। अब H2O को हम लोग कैसे यूज करेंगे? सपोज हाइड्रोजन आपका 2 ग्राम कंबाइन कर रहा है और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है। अब सपोज हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी एक ऐसा पर्टिकुलर सैंपल लिया है जिसमें हाइड्रोजन की जो कैपेसिटी है या सॉरी वेट है वो 2 ग्राम ही है। हमने ऐसा कोई सैंपल लिया है अपने इस लॉ को प्रूव करने के लिए, और आप देखोगे ऑक्सीजन की इसमें क्या है 32 है। तो आपने हाइड्रोजन को तो इसमें फिक्स कर लिया, एक एलिमेंट तो फिक्स करना पड़ेगा तभी तो आप दूसरे का रेशियो निकाल पाओगे। आपने हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया तो अब देखोगे जो ऑक्सीजन का रेशियो आया है, ठीक है, वो आया 16/32, 32 दैट इज 1:2। तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉरी आप वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कोई भी सैंपल लेंगे और आप सपोज एक एलिमेंट को फिक्स कर देंगे। आपने अगर हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया तो ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी का जो रिस्पेक्टिवली जो इन दोनों कंपाउंड्स में जो भी रेशियो होगा वो एक होल नंबर में होता है। होल नंबर यू अंडरस्टैंड ना? ठीक है, फ्रॉम 0 to so on, तो वो आपस में होल नंबर में ही एप्लीकेबल रहेंगे। एक एग्जांपल से और समझाते हैं। सपोज आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन भी आपस में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। हमने क्लास 10th में एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस पढ़ रखे हैं। तो सपोज मैं जनरली इसका एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया CH4 और मैंने एग्जांपल ले लिया C2S6। आई होप यू रिमेंबर, ये मीथेन है एंड दिस इज इथेन। ठीक है, अब मीथेन में आपसे देखिए आप 12 ग्राम कार्बन लिया, हाइड्रोजन का 4 ग्राम हो गया। ठीक है, यू कैन टेक विद द मोलर मास, उनके एटॉमिक मासेस से आप रिलेट कर सकते हो। अब कार्बन का यहाँ पे 24 ग्राम दिख रहा है मेरे को और हाइड्रोजन का यहाँ 6 ग्राम दिख रहा है। इस लॉ को प्रूव करने के लिए मुझे दोनों में से एक एलिमेंट को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई भी फिक्स नहीं हो रहा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस एलिमेंट में आपको क्या करती हूँ, इस एलिमेंट को इस तरह से कुछ जैसे हम लोग एलिमिनेशन में करते थे ना, एक पर्टिकुलर उससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 ग्राम हमने ले रखा है, हम एक ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये वाला जो एक कार्बन का है, सपोज मैं कार्बन को लेती हूँ, वो फिक्स हो जाए। ठीक है, उसका जो रेशियो हो जाए वो फिक्स हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इसको कार्बन को फिक्स करने के लिए मीथेन के 2 मोल्स ले लिए। ठीक है, 2 मोल, पहले मैंने 1 मोल लिया था, या एक मोल, आप अभी आप मोल नहीं जानते हो तो आप ये समझ सकते हो CH4 क्या है, मैंने एक उसका CH4 का एक मोल एक कंपाउंड लिया एक, अब मैंने 2 कंपाउंड ले लिए, तो इंटू 2 यहाँ हो जाएगा, इंटू 2 यहाँ हो जाएगा।
क्योंकि जितना मैं कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगी, जितना मैं ग्राम्स बढ़ाऊंगी, हिसाब से मल्टीप्लाई होंगे। तो अब आप देखोगे कि कार्बन को तो मैंने फिक्स कर दिया, कार्बन तो मैंने सेम कर दिया, 24 एंड 24, दोनों 24 हो गए। और यहाँ पे कितना हो गया, 8 ग्राम एंड 6 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 8/6 करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, 4/3। तो ये रेशियो देखो एक होल नंबर में, अगर हम एक एलिमेंट का जो वेट होता है वो सेम ले लेते हैं, तो दूसरा एलिमेंट भी जो होता है वो होल नंबर में ही कंबाइन करता है, होल नंबर के रेशियो में। देखो 4:3 आ रहा है। तो समरी कैसे बताई जाएगी इसकी, कि अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट, सॉरी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो अगर आप एक एलिमेंट का जो वेट है उसे फिक्स कर देते हो, तो दूसरा जो होता है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। दिस इज ओनली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ओके, तो हमने क्या लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन पढ़ा, कंजर्वेशन पढ़ा कि आपका प्रोडक्ट साइड का और रिएक्टेंट साइड का जो मासेस होंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू एड अप। डेफिनेट प्रपोर्शन में कि जब कोई भी दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। और नेक्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसमें एक अगर एलिमेंट को आप फिक्स करते हो तो दूसरा एलिमेंट अपने आप ही होल नंबर में कंबाइन करता है, होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करता है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट लॉ हम लोग पढ़ने जाएंगे तो दैट इज योर एवोगैड्रो लॉ। ओके, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, ये लॉ हम लोग चैप्टर नंबर 5 में भी दोबारा पढ़ेंगे। सो प्लीज पे अटेंशन हियर कि एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ के बारे में बताया था कि जो एवोगैड्रो लॉ स्टेट ये करता है कि अगर आप दो गैसेस लेते हो, ठीक है, सपोज आपने एक बीकर लिया ए और एक बीकर लिया बी, ठीक है, फाइन, इसमें गैस ए है और इसमें गैस बी है। ठीक है, फर्स्ट बीकर में गैस ए है, सपोज कोई भी गैस हो सकती है, और सेकंड बी में गैस बी, सेकंड बीकर में गैस बी है। अगर आप इनकी वॉल्यूम इक्वल लेते हो, इसमें भी वी वॉल्यूम है, इसमें भी वी वॉल्यूम है, आपने दोनों में बराबर वॉल्यूम लिया, सपोज आपने 1 लीटर इसमें भी लिया, 1 लीटर इसमें भी ले लिया। ठीक है, और इन दोनों गैसेस को आपने सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे रखा है। प्लीज ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर इनमें से आप चेंज करोगे तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रेशर भी सेम होना चाहिए और टेम्परेचर भी आपका सेम होना चाहिए। तो एवोगैड्रो ने इस चीज को समझाया कि इफ यू टेक टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर एंड विद द सेम वॉल्यूम, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए will be automatically equal to number of molecules of B। अगर आप कोई भी गैस सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे लेते हो, सेम वॉल्यूम का लेते हो, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है और इस क्लास में भी हम दोबारा सीखेंगे। तो ये तो बेसिक लॉज थे जो आपने पढ़ने थे इसमें से। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कम इज इन साइंटिफिक नोटेशन। So now after studying the laws of Avogadro law, नया टॉपिक हमारा आता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हम क्लास 8 से करते आ रहे हैं कि हम अपनी किसी भी डेसिमल वैल्यूज को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, जैसे आपने अपना डेसिमल इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, अगर आप अपना डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, आपकी वैल्यू जो आएगी पावर में वो पॉजिटिव आएगी। अगर आप राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ योर नेगेटिव वैल्यू, पावर जो 10 की आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो पहले तो आप डायरेक्शन से याद करोगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जो डेसिमल्स आना चाहिए वो फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आना चाहिए, फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में। ठीक है, कैसे, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं, गोइंग टू स्टार्ट विद इट। लाइक यू आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स आर 6 and 5, ये दोनों आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 and 5 you have shifted the your decimal to 5 places, so and that too in a left direction। आपने किस डायरेक्शन में किया, सॉरी राइट डायरेक्शन। ठीक है, आपने किस डायरेक्शन में किया है, you have shifted towards your right direction, so that means
दिस यू आर गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ माइनस, तो आपने कितने शिफ्ट किया था 1 2 3 4 5, तो यू गोइंग टू हैव -5। ठीक है, आपने क्या शिफ्ट किया है, राइट साइड में शिफ्ट किया है, इससे नेगेटिव की वैल्यू आई है आपकी, नेगेटिव की पावर आई है आपकी। नाउ हियर 1 2 3, ठीक है, these two are your non-zero digits, so you have shifted the 3 place value and towards your left side, so you're going to have 3.78963 into 10 की power 3, आपने लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया इसलिए आपने पावर प्लस की लगाई है। Now one more example coming again, so 1 2 3 4, ये दोनों ही आपके फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इट विल बी 2.34 into 10 की पावर -4, क्योंकि आपने डायरेक्शन क्या करा है, राइट साइड पे लिया इसलिए माइनस में। फाइन, नाउ अगेन यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं दिख रहा है, तो आपको पता है जब नेचुरली आपका डेसिमल कहीं नहीं होता तो आप एंड ऑफ द डिजिट्स मांगते हो उसको, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू कंसीडर डेसिमल हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so your power will be in the form of 10 and you are shifting towards your लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जा रहे हो तो पावर आपकी प्लस पे होगी, तो 3.4567 into 10 की पावर 10 प्लस 10, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड में किया तो आपने पावर प्लस की रखी है। सो यू आर गोइंग टू रिमेंबर व्हाइल शिफ्टिंग। अब ये जरूरत क्यों पड़ी पढ़ाने की, दोबारा से क्यों रिवाइज करवाया, क्योंकि केमिस्ट्री में व्हेन यू गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स द आंसर एंड द सॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड कि आप उसको अपना नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस स्टडिंग अबाउट योर आपका आपने हम लोगों ने अभी सिग्निफिकेंट सॉरी हम लोगों ने अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है तो दैट इज योर प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। अब प्रिसीशन और एक्यूरेसी में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है और इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले प्रिसीशन क्या है, प्रिसीशन प्रिसीशन it is the agreement to the true value of experiment। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप ये लिखोगे, it is the agreement to the true value of the experiment। अब है क्या ये चीज, अभी जैसे आप लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, टाइट्रेशन एंड ऑल, तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, लाइक आपकी टीचर आपको करके देगी तो जो उनका आंसर होगा दैट विल बी, और जो स्टैंडर्डली ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा। अब उस रिजल्ट को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, इट इज अ ट्रू वैल्यू। सपोज कोई टाइट्रेशन का एग्जांपल है, कोई भी हमने टाइट्रेशन करी, ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन सिखाई जाएगी आपको, तो सपोज उसका रिजल्ट 2 है। ठीक है, आपका उसका जो रिजल्ट 2 कैसे है, जब आपने टाइट्रेशन करी, या जैसे आप टाइट्रेशन को अगर अभी आपने स्कूल में नहीं कर रखा है तो आप जैसे आप जानते हो कि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होता है, तो किस पॉइंट पे वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट स्केल से नापा जाता है वहां पे। तो वो पॉइंट जो होता है, जो स्टैंडर्ड स्केल है, उसमें सपोज आपका रिजल्ट 2 आया, तो 2 इज योर प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, ये आपकी एक्यूरेट, मतलब 100% इसमें एक्यूरेसी है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2 है। अब नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू या द प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, अब कैसे, जैसे आप एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी और एक स्टूडेंट है सी, उसने वो सेम एक्सपेरिमेंट किया है जो एक्सपेरिमेंट अभी आपको यहाँ पे करवाया टाइट्रेशन का या व्हाटएवर आपका न्यूट्रलाइजेशन का, जिसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो 2 आ रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब आपने जो वहां पे एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने ऑब्जर्व किया अपने अलग अलग लेवल पे, तो जो स्टूडेंट ए है सपोज उसका रिजल्ट 1.95 आया, उसकी जो वैल्यू आई वो 1.95 आई, सी की आई 3.05, बी की आई 2.09 सपोज, ऐसी आई। तो आप देख सकते हो कि कौन सा बच्चा अपनी प्रिसाइज वैल्यू के बहुत करीब है, तो ही इज ए।
ठीक है, जो ए है वो अपनी एक्यूरेट वैल्यू, अपनी प्रिसाइज वैल्यू के बहुत करीब है, मतलब उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा अच्छी है। अब जैसे एग्जांपल आज के टाइम पे लेते हैं, आजकल कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम पे मैनी वैक्सीन आर कमिंग अप इनटू द मार्केट, तो उसमें आपको बताई जाती है कि इसकी एफिकेसी 80% है, 90% है, इतनी एफिकेसी है, मतलब वो बीमारी को 100 में से कितनी टाइम्स उसको खाट सकती है, उसे कैसे कितना इरेडिकेट कर सकती है। अगर कोई वैक्सीन 90% इफेक्टिव है तो मतलब 100 में से 90 लोग उसमें से उसको उसके एडवांटेज ले सकते हैं। 10% में हो सकता है कि कोविड दोबारा आ जाए या कुछ और हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो। तो 100% इज अ ट्रू वैल्यू, इज अ प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है, वो तो उसका 100 हम वैक्सीन से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 100% रिजल्ट दे, लेकिन एक्चुअली में उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, वो हमें साइंटिस्ट ने बताया कि 90% है, तो हम 10% के लिए उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अब जैसे आपका स्टूडेंट ए था, उसने 1.95 वैल्यू निकाली, तो वो 2 की वैल्यू, उसके जो एक्चुअल रिजल्ट 2 है वो उसके बिल्कुल बहुत करीब है। 2.90 फिर भी बेटर है, ठीक है, लेकिन ए से थोड़ा कम है, क्योंकि 2.9 को हम 2.1 के करीब लिख सकते हैं, फिर भी 0.1 की उसने थोड़ी बहुत गलती करी है। फाइन। 3.05 बहुत ही दूर है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, तो बहुत दूर है, तो ये तो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। इन दो की फिर भी थोड़ी बहुत एक्यूरेसी है, द मोस्ट इज अ ए। तो दिस इज प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी उसके एक्यूरेसी कितना वो अपनी ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच पाया है। फाइन। तभी जैसे हम टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपसे टीचर कहेगी, या हम लोग टीचर हम बच्चों से ये बोलते हैं कि आप क्या करो, आप 2 से 3 बार एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व वैल्यू निकालो, फिर उसका एवरेज निकालो, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि पहली बार में आपकी जो वैल्यू आए वो बिल्कुल ठीक आ जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड फॉर प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। नाउ second topic that we are going to come is significant figures. Significant figures क्या होते हैं? Significant figures का मतलब होता है the figures which are important for your calculation, you should not ignore it. जैसे for example हम लोगों ने लिखा है मेरी कैलकुलेशन है 62 इंटू 73, तो ऐसा तो नहीं है कि 73 को मैं 70 बना दूं। अगर मैं 62 को 73 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कोई और आंसर आएगा, और 62 को गलती से मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर कुछ और आ जाएगा। तो मेरे आंसर में फर्क आएगा ना, क्योंकि मैं डिजिट चेंज कर रही हूँ, तो मेरे आंसर में फर्क आएगा। अब 73 को मैंने 70 बनाया है, सिर्फ 3 को मैंने इग्नोर करा, तो इग्नोर करने से देखोगे कि आपके आंसर में कितनी फ्लक्चुएशन आती है। तो इसलिए हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को सीखते हैं, ताकि हमें ये समझ पाए कि हमें कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको अपनी कैलकुलेशन में इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अब कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ रूल्स दे रखे हैं, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको लगा है कि मैम ने इतने सारे रूल्स लिख रखे हैं तो इतने रूल्स याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, यू आर गोइंग टू हैव इट इन अ वेरी इजी वे। कैसे? जैसे फर्स्ट रूल है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, आपको उसको वैल्यू में लेना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन में लेना चाहिए। जैसे 285 है, इसमें हर एक डिजिट की अपनी एक वैल्यू है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने फिगर्स हैं? 3। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। 0.25 है, ठीक है, जीरो की कोई अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, बट 0.25 को आप चेंज नहीं कर सकते। इट विल हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपसे पूछेंगे, आपको कोई पर्टिकुलर डिजिट्स दे देंगे और बताएंगे इसमें बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप ऐसे बताओगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल वैल्यू आपको दिख रही है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, मींस 1 to 9, उनको वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेस वैल्यू में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्या आता है रूल? zeros presiding to the first non-zero digits are non-significant. अगर आपका डेसिमल वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई है और उसके बाद भी डेसिमल के बाद भी जीरो है, तो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे मैं लिखा है 0.03, 0.03 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 3, ठीक है, दैट शुड नॉट बी चेंज। नाउ here it is 0.052, how many significant digits it had? It has 2 significant figures. अब सपोज आप कहोगे मैम इतने रूल्स नहीं ध्यान रहते, अब भूल जा, तो एक तरीका और भी है। 0.03 है, मैं 0.0 को 3 इंटू 10 की पावर -2 लिखती हूँ। अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया, तो पावर को रहने दो,
कितने डिजिट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 1, तो इट हैज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट. इफ आई राइट 0.0052, you write it 5.2 into 10 की पावर 1, 2 and 3, तो -3. तो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ गए 2, जो पावर के फॉर्म में दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सपोनेंशियल रूल. तो आप कहोगे कि जो हमारे ये डिजिट्स हैं दे आर योर सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसमें 1 है और इस वाले में 2 है. ठीक. अब इसी तरह से हम इसके रूल्स को अपने प्रैक्टिस फॉर्म में लाते हैं. मैं कुछ यहाँ पे डिजिट्स लिख रही हूँ. यू ट्राई द सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो कैलकुलेट करने हैं. ठीक है. अब देखो जैसे ये 5000 है. आप सिग्निफिकेंट के फिगर्स के रूल्स भूल गए, आपको नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, आप ऐसे करो 5 into 10 की पावर कितना 3. तो इट हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर्स दिस. इट कैन गो इनटू एक्सपोनेंशियल रूल. हियर इट इज 1, 2 and 3. तो 4.6 10 की पावर -3. So how many significant figures it has? It has 2 significant figures. Now here it is already in a standard form. So 1, 2, 3, 4, 5, all the 5 digits are significant. क्योंकि जो zeros, जैसे मैंने बोला था एक कि 0.003 है, तो इसमें जो ये जीरोस होते हैं अगर डेसिमल के आगे भी जीरो लगा हुआ है तो ये सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि आपने पावर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करके देख लिया. दैट इज 3 into 10 की पावर -3. ठीक है. तो आपका एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट निकला. अब जैसे इसमें जैसे थर्ड वाले को बताया था, थर्ड में जो डेसिमल वैल्यू है उसके आगे आपका नॉन जीरो डिजिट है 2 है वहां पर. तो इसका मतलब इसकी अपने आप में एक वैल्यू है, तो आपको सबको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी 2.0046, और तब जाके आप इसमें देखोगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. नाउ here you can express them in the power form also. That will be 1, 7.968 10 की पावर योर 3. ठीक है. लेकिन इनकी अब सारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो फर्स्ट रूल ने क्या बताया था कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. इसमें दैट यू हैविंग द 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू. ठीक है. तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानना है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर अपने रूल्स के हिसाब से करो. बट मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर्स में करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और दूसरा आपको डिजिट्स पहचानने में कभी भी गलती नहीं होगी. सो दिस इज द टाइम यू शुड जॉट डाउन योर नोट कॉपी. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है आफ्टर your significant figures is the concept of atomic mass, formula mass and molecular mass. अभी होता क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9th में इस चीज को पढ़ रखा है. ठीक है. फाइन. कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास में क्या है, हमारे पास एटॉमिक मास एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर्मूला कंपाउंड्स वो होते हैं. तो उनके मासेस को हम कैसे निकालते हैं. जैसे एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन हमने क्लास 9 में भी पढ़ रखी है. इट इज द मास ऑफ द एटम, it is the mass of an atom compared with C12 atom. कार्बन का आइसोटोप होता है C12, हम उससे कंपेयर करते हैं. ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है दैट यू कैन मेमोराइज, बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है आपको पता है. एटॉमिक नंबर क्लास 9th में पढ़ा था इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल स्पीशीज. ठीक है. अगर 4 स्पीशीज होगी तो हम लोग कह नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा वो. ठीक है. बेसिकली हम ये देते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. जैसे आपको पता है ऑक्सीजन आपके का एटॉमिक नंबर क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. ठीक है. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता था. तो इसका जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 8 था. ठीक है. अब मास नंबर कैसे निकालते थे, मास नंबर was 8 was proton and 8 was neutron. ठीक है. मास नंबर कैसे निकलता था वहां पे, that was mass of your number of your proton
प्लस नंबर ऑफ योर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो दैट वाज 8 + 8 दैट वाज 16। ऑलमोस्ट ये देखते हैं कि जो मास नंबर होता है या एटॉमिक जो मासेस होते हैं अपना एटॉमिक नंबर के डबल होते हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं पे कुछ एक्सेप्शन भी प्रेजेंट है। तो फिलहाल के लिए हमने कैसे समझना है, एटॉमिक मासेस विल बी गिवन टू यू इन योर क्वेश्चंस, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आगे कंसेप्ट्स की तो आपको ये सब चीजें याद हो जाती हैं। जैसे सोडियम इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 11, तो बच्चे सोचेंगे इसका मास नंबर 22 होगा, क्योंकि मास नंबर मैंने बोला डबल होता है, लेकिन मैंने ये भी बोला कुछ एक्सेप्शन प्रेजेंट होते हैं। कैसे? क्योंकि सोडियम में प्रोटॉन तो 11 है ही, लेकिन जो उसके न्यूट्रॉन है दे आर 12, तो 11 + 12, तो सोडियम का एटॉमिक मास करीब करीब 23 निकलता है। व्हाट इज 3? 23 AMU। फॉर्मूला इसके यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो एटम्स के बारे में हो गया, जनरली एटम्स के बारे में आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास का, मॉलिक्यूल्स का कैसे मास निकालेंगे? जैसे Cl2 है, तो क्लोरीन का जो मास होता है, क्लोरीन इज एट 17 एटॉमिक नंबर और इसका मास एक्सेप्शन है 35.5 AMU, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन की दो एटम्स मुझे दिख रहे हैं, तो 2 × 35.5, so that will be 71 AMU. If I talk about nitrogen, nitrogen is at nitrogen gas, dinitrogen. If I talk about nitrogen, nitrogen is at 7 atomic number. Its mass number is 14, so that is 2. It has having the atomicity of 2. दो एटम्स यहाँ प्रेजेंट है और एक एटम का कितना होता है? 14 होता है, तो उसका कितना निकलेगा? 28 AMU। इसके लिए बेसिकली आपको 1 to 30 तक का सबके एटॉमिक नंबर्स बेसिकली याद होने चाहिए और प्रैक्टिस कर करके एटॉमिक मासेस भी आ जाते हैं। और क्वेश्चन में काफी बार एटॉमिक मासेस की वैल्यू गिवन होती है। क्लियर? सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब फॉर्मूला मास कैसे निकालना था, जैसे या मोलर मास जिसको हम लोग कहते हैं। सपोज NaCl है, ठीक है। NaCl का आपके सामने मैंने भी 23 बताया था, क्लोरीन का मैंने 35.5 बताया, तो टोटल कितना आ गया? 58.5 AMU। अगेन एटॉमिक मास यूनिट। सपोज मुझे MgCl2 का निकालना है, तो दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज योर एट एटॉमिक नंबर 12, इसका मास होता है 24, प्लस क्लोरीन के कितने हैं? 2 हैं, और एक क्लोरीन का मैंने बताया था कितना होता है? 35.5, so that will be your 71 and here will be your 5 and 9, 95 AMU, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 63.5। कैसे पता? प्रैक्टिस से पता है और गिवन है सपोज, ठीक है, बता रखा है इसको। सल्फर का होता है 32, 16 पे होता है 32, कुछ तो हमें ऐसे याद हो जाता है क्योंकि उसके डबल होते हैं। ऑक्सीजन का होता है 8 पे, 8 पे उसका एटॉमिक नंबर, डबल हुआ 16, ठीक है, 16 × 4, तो दैट इज 63.5 + 32 प्लस योर 64, ठीक है। 4 6 24 and 2 and 64, so it will come 159.5 AMU. So this all you have also studied in class 9. Class 9 में भी आपने ये concept पढ़ रखा है। अभी कंसेप्ट क्यों पढ़ाया? क्योंकि जब मैं नया कंसेप्ट स्टार्ट करूंगी, मोल, ठीक है, मोल विल बी द नेक्स्ट कंसेप्ट टू बी डेल्ट विद। उसमें क्या होगा? दिस मोलर मासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोल का फॉर्मूला मोलर मास को कंटेन करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन यू आर गोइंग टू कम फॉर द मोल कंसेप्ट। अब ये जो मोल कंसेप्ट है ये दोबारा क्लास 9 से आया हुआ है। हमने मोल कंसेप्ट वहां पे ही पढ़ा था, बट इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला वाइज भी पढ़ेंगे और कंसेप्ट वाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे? आपको पता है मोल, पहले हम ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि मोल होता क्या है। मोल इज नथिंग बेटा, मोल इज जस्ट अ यूनिट टू एक्सप्रेस योर सोल्यूट और योर सॉल्वेंट। अब आपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिया, सपोज NaCl का लिया, उसको आपने वाटर में डाला, तो आपको पता है जो मोल होता है, जैसे आपका किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये यूनिट्स होती हैं वेट को नापने के लिए। ऐसे मोल भी एक यूनिट होती है केमिस्ट्री में, आपने कितना मास उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिसॉल्व करा है, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि, क्योंकि जो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम होते हैं ये केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस बनाने के लिए भी थोड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो हम सबसे छोटी यूनिट पे जाते हैं, दैट इज मोल।
अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, अपॉन योर मोलर मास ऑफ सल्यूट, अगर आप सल्यूट की बात कर रहे हो। और अगर आप सल्यूट सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो ये फॉर्मूला वो दोबारा ही वही बन जाएगा। आप इसको जनरल फॉर्मूला लिख लो, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको सब्सटेंस नहीं याद करना तो सिंपल से याद करो, मोल दैट इज एक्सप्रेस्ड इन एन इन केमिस्ट्री इज मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, सिर्फ आपकी वर्डिंग्स की डिफरेंस है। क्लियर? अब ये मोल कंसेप्ट का ये आपको फॉर्मूला याद करना जरूरी है, दैट इज अगेन फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, मोल क्या होता है? एक छोटी यूनिट होती है, हमारी कंसेंट्रेशन नापने के काम आती है, हमने कितना उसमें सॉल्ट एसिड बेस कितना हमने डिसॉल्व करा है पर्टिकुलर वॉल्यूम में, पर्टिकुलर ग्राम्स ऑफ आपके सॉल्वेंट में। तो ये मोल हमारी एक एंटिटी है, एक छोटी सी यूनिट है। जैसे किलोग्राम ग्राम होते हैं, तो मोल भी केमिस्ट्री की एक एंटिटी है। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन इसमें पता लगती है। क्लियर? अब मोल के साथ हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, दैट वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स, कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। व्हाट वाज एवोगैड्रो नंबर? मोल इनटू 6.00022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कैलकुलेट द मोल, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द मोल ऑफ 100 ग्राम CaCO3। मैं ये सपोज आपको एग्जांपल दे दूं, 100 ग्राम मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, आप इसके मोल्स निकालोगे, इसमें कितने मोल्स बनेंगे, मतलब ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं ना हम लोग क्लास 5 से। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था अभी? मोल इज इक्वल्स टू, मोल इज इक्वल्स टू योर मास अपॉन मोलर मास, ये बताया। अब मास आपको कितना गिवन है यहाँ पे? 100 ग्राम, 100 ग्राम। मोलर मास CaCO3 कैसे निकलेगा? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 3, 3 इंटू 16 दैट इज 48। तो 100 आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा दोबारा से 100 आएगा। इसका मतलब 1 मोल, मतलब 100 ग्राम CaCO3 का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, तो हमने क्या करा, बस हमने एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट सीखा है कि हमने कैसे अपने मासेस को मोल में कन्वर्ट करना है विद द यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। सपोज इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करूं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स, the molecules of 100 gram of CO3, CaCO3. Calculate the molecules in 100 gram of CaCO3. CaCO3 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? ठीक है, CaCO3 में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अगर आप उसको डिसॉल्व करते हो, अपने आप में कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है? तो आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बेचा, एटम्स भी हो सकते हैं, सब हो सकता है इसमें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल into Avogadro number, n is your mole, representation of mole। मोल अभी अभी आपने 1 मोल निकाला था, ये आपको दोबारा निकालना है, तो मास अपॉन मोलर मास, 100 ग्राम इसका मास हो गया, और CaCO3 का मोलर मास अभी आपने 100 निकाला, मतलब 1 मोल निकाला था। Avogadro number 6.022 10 की पावर 23। So this is going to have again 1 mole, it is going to 6.00 10 की पावर 23। ठीक है, तो एक मोल ऑफ 100 ग्राम CaCO3 में एक मोल है, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये तो आपको फॉर्मूला आप मैंने समझाया है। फाइन। अब इसमें और चीजें भी आ सकती हैं।
सपोज वी विल डू इट विद एन एग्जांपल ऑफ योर न्यूमेरिकल, ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है मास, मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O कितना है 54 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना होता है H2O का, तो ये चीज कॉमन है निकालने के लिए, तो मोलर मास का होता है 54, ठीक है, सॉरी, मोलर मास होता है आपका H2O का, मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O होता है आपका, दैट इज 2 इज योर हाइड्रोजन, 1 into 2, ठीक है, 1 is for hydrogen and there are 2 atoms, 2 into 1, plus an oxygen is 16, so you are going to have 18 gram, 18 AMU, or you can 18 gram per mole. This is a units you can write, ठीक है, तो ये आपने लिखा है एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equals to mole into Avogadro number। मोल को हम, अब मोल तो हमें दे नहीं रखे, हमें ग्राम्स में दे रखा है, तो मोल को हम ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मास कितना है मेरा पास 54, मोलर मास में तुम्हारे सामने 18 निकाला, इनटू योर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू कैलकुलेट 18 3 54 and that will be 0.066 and 18 into 10 की पावर 23, मतलब 54 ग्राम में 3 तो मोल्स हैं और 8.066 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। आप एक ग्राम को देखो, आप अभी तक 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ ग्राम के बारे में, किलोग्राम्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ते थे। अब आपने ये सीखा है कि ग्राम किलोग्राम को आप कैसे अपने, या मासेस को कैसे आप अपने मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जो मोल एक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है अपनी कंसेंट्रेशन को वेरी बताने के लिए, ठीक है। अब इसी तरह से वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of 6.0 10 की पावर 23 molecules of NH4Cl, ठीक है, हमें मास निकालना है। मैंने यहाँ पे क्या चीज हटा दी है, मास हटा दी है, तो अब हम लोग उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का वी हैव सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, हमें ऑफ 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6.022 10 की पावर 23, और NH4Cl, NH4Cl का जो मोलर मास होगा वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसको आप डायरेक्टली भी यूनिटी मेथड से कर सकते हैं, बट मैं आपको अभी सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को कैरी ऑन करा रही हूँ। देन आई एम गोइंग टू आल्सो हैव यू गिव यू अ डायरेक्ट कंसेप्ट ऑफ दिस, ठीक है। एन नाइट्रोजन इज योर 14, ठीक है, हाइड्रोजन इज 4, 4 1 4, एंड फ्लोरीन इज 35.5, दिस इज द मोलर मास, सो यू आर गोइंग टू हैव इट हियर 0.5, 5 and 4 9, 9 and 4 13, and 1 is 4 and 5, 53.5 आ गया, ठीक है, ठीक है। इफ इट इज करेक्ट, यस, 0.5 है, 5 and 4 5 and 4 9 and 4 13, 1 2 and 2 and 3 5, 53 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब आपने मास निकालना है, अगेन वेरी इजी, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equals to mass upon molar mass into Avogadro number। mass you don't know, कोई बात नहीं, molar mass आपने अभी 53.5 निकाला है, number of moles is equals to 6.022 10 की पावर 23, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको दे रखे हैं, ठीक है, 6.022 10 की पावर 23। अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मास आपका कितना आएगा 53.5 ग्राम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज से कैंसिल हो जाएगी, दिस इज लेफ्ट विद द 53.5 ग्राम। तो आप किसी इन दो फॉर्मूले से ही काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एंड इसको करने का एक डायरेक्ट मेथड भी है दैट इज गोइंग टू कम विद द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ।